Now in this lecture we see the integration by parts rule. So here first we see the definition of integration by parts rule. So integral u into v dx. This is u into integral v minus integral d by dx of u into integral of v dx plus integral constant c. Now in another way, the same rule we write like this way, because when we apply integration by parts rule, we have to choose the first and second function by using the rule liet. Okay, so just I am write down this rule in the form of first and second function. So what is that rule? First function into integral of second माइनस, थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रल साइन ले लो क्योंकि उसके अंडर में सब कैलकुलेशन करना है, माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये बड़े इंटीग्रल का डी एक्स यहाँ पे आपको रखना है. रूल वही है, सिर्फ जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हो उस समय आपको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चूज करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई I am write down the same rule in the form of first and second function. First function integral of second minus integral derivative of first into integral of second. Now how we choose first and second function? तो उसके लिए liet नाम का रूल है, LIATE. We use this rule to choose the function first and second. L का मतलब होता है logarithmic function. Logarithmic function, that is log x, log of x plus 1, like this. Okay. I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन. तो इसमें मोस्टली कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, उस टाइप के फंक्शंस जनरली यूज होते हैं इनवर्स फंक्शन. उसके बाद में अलजेब्रिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन. तो आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, 2x plus 3, लाइक दिस. ओके. आफ्टर देन टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, लाइक दिस. एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो exponential function e raised to x, a raised to x, phi raised to x, like this way. So in such a way, when we when we apply integration by parts rule, we have to use liet rule to fix the first function and second function. Now we see the examples on integration by parts rule. The examples are very simple. इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स. देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूं LIATE. तो e सबसे लास्ट में है इसलिए एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड में ही रहने वाला है. आपको सिर्फ चेक करना है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक उसके ऊपर आता है, तो अलजेब्रिक फर्स्ट हो गया और एक्सपोनेंशियल सेकंड हो गया. अप्लाई दिस रूल, फर्स्ट रूल. अब फर्स्ट फंक्शन x into integral of second minus integral derivative of first यानी x का डेरिवेटिव into integral of second यानी integral of e raised to x dx plus c. तो देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into इंटीग्रल ऑफ सेकंड. तो write down the integral e raised to x का integral e raised to x, derivative of x is 1, and again integral of e raised to x, that is e raised to x. तो देखिए 1 into e raised to x, sometimes students यहाँ पे भी integration by parts rule अप्लाई करते हैं लेकिन वो गलत है. 1 into e raised to x का मतलब e raised to x होता है. and finally we get what is the integral of e raised to x, it is again e raised to x. सो प्लस सी. चाहे तो आप e raised to x को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर अदरवाइज ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम.
So in such a way we have to solve the examples on integration by parts. Now take the another example, x into log x. तो देखिए log अभी फर्स्ट आता है इसलिए ये फर्स्ट, उसके बाद अल्जेब्रिक जो है वो सेकंड आता है इसलिए अल्जेब्रिक सेकंड। तो लॉगरिथमिक फर्स्ट है और अल्जेब्रिक सेकंड है। सो अप्लाई करो फॉर्मूला। क्या आता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन अभी log x है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। So what we get here then? Log x into, अब x का इंटीग्रल x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 minus what is the derivative of log x? 1 upon x, again x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is the rule of x raised to n. So log x into x square by 2, अब देखो एक x कैंसिल करो, 1 by 2 into x dx plus c. So log x into x square by 2 और इसका इंटीग्रल x square upon 2 plus c. So finally we get answer log x into x square by 2 minus 1 by 4 x square plus c. So in such a way we apply integration by parts rule. Another example, x into tan inverse x. So apply the rule Liet and choose here which one first function and which one is second function. So LIATE, तो इनवर्स पहले आ गया और अल्जेब्रिक जो है वो बाद में आ गया। तो इस तरह से सबसे पहला फंक्शन हो गया आपका tan इनवर्स x, ये आपका फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। तो करो अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल? tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो सबसे पहले तो आपका रूल करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो क्या होता है यहाँ पे tan इनवर्स x, फिर से x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाय 2। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड अगेन इट इज x स्क्वायर बाय 2 इंटू dx प्लस c. सो हियर tan inverse x into x square by 2. So taking 1 by 2 common, x square upon 1 plus x square plus c. अब बताइए मुझे यहाँ पे ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है तो आपका जो डिनोमिनेटर का पावर है, डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो एज इट इज न्यूमरेटर में लेके आना है। यानी यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में लेके आना। तो वी हैव टू टेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। और अदरवाइज सेकंड वे क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो ऐसे समय आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। तो डिवीजन से फास्ट कैलकुलेशन अरेंजमेंट से होता है, +1 -1 कर दिया है dx plus c। अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम रिजल्ट, डिवीजन के बाद भी वही रिजल्ट मिलता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। टेक द कैलकुलेशन, जो टर्म कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। सो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ, ये कैंसिल करो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। सो वी गेट हियर tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ
इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1/1 plus x square dx plus c. राइट डाउन द फाइनल आंसर. क्या आता है फाइनल आंसर? tan inverse x into x square by 2. Integral of dx is x and it is tan inverse x plus c. So in such a way we find out the integral of x into tan inverse x. Now another example. x square into log x dx. अब मैं x की जगह x square लेता हूं, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है सॉल्व करते समय. सो अगेन log पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा. अप्लाई द रूल हियर. फर्स्ट फंक्शन into integral of second function minus integral derivative of first into integral of second. देखो फॉर्मूला सबसे पहले, अदरवाइज अगर फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. तो log x इनटू, देखो x रेज टू 2 plus 1 upon 2 plus 1 that is x cube upon cube. डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x और यहाँ पे भी 2 plus 1 upon 2 plus 1 dx plus c. तो ये हो जाएगा log x इनटू x cube upon 3, 1 upon 3 take it outside, तो यहाँ पे आएगा x square dx plus c. तो यहाँ पे आएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, अगेन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. यानी फाइनली वी गेट log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी. सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू log x. अब हम एक्स स्क्वायर को दूसरे फंक्शन के साथ लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लेते हैं. ओके, ये लेते हैं. चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, LIATE. तो यहाँ पे कौन पहले आता है? अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है. तो अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x? सो इंटीग्रल ऑफ cos x इज प्लस साइन एक्स. इंटीग्रेशन में साइन एक्स होता है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x. एंड इंटीग्रल ऑफ cos x इज साइन एक्स इंटू dx प्लस c. तो देखो डेरिवेटिव 2x आता है, इंटीग्रल ऑफ cos इज प्लस साइन एक्स. सो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, 2 टेकिंग आउटसाइड एंड x इंटू साइन एक्स प्लस c. तो देखो फिर से x इंटू साइन एक्स आया है. इसका मतलब है कि यहाँ पे भी दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है. तो यहाँ पे फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना है. तो एक्स स्क्वायर में log x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इसलिए x कैंसिल होके फिर आपको डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल वहां पे अप्लाई नहीं करना पड़ा. लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ कोई e रेज टू एक्स आता है, साइन एक्स आता है, कॉस एक्स आता है, tan एक्स आता है. तो इसके लिए आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. देखो फिर से फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन दैट इज सेकेंड फंक्शन. तो कैसे करेंगे आप? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड अगेन माइनस कॉस एक्स dx प्लस c. तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स
ये इंटू है इसलिए माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, देखो भी माइनस, पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। देखो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। So in such a way we have to find out the integral of x square into cos x by using integration by parts rule. तो अभी और भी कुछ फंक्शंस हैं जहां पे दो फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे जो दो स्पेशल फंक्शन हैं उसका हम इंटीग्रेशन देखते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ log x, इंटीग्रल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो ऐसे जो फंक्शंस है जिसका इंटीग्रेशन अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, जैसे कि log x का इंटीग्रल अभी तक हमको नहीं मिला है, साइन इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, इनका भी इंटीग्रेशन हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ logarithmic function and inverse trigonometric function, use integration by parts rule by taking one as a second function. तो this is only for logarithmic function and inverse trigonometric function. उसके लिए ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सेकंड फंक्शन एज अ वन करके यूज करना पड़ेगा। देखिए, इंटीग्रल ऑफ log x, डायरेक्ट इंटीग्रल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, log x का इंटीग्रल 1/x बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, log x का डेरिवेटिव 1/x है और इंटीग्रल ऑफ 1/x log x होता है। तो log x के इंटीग्रल के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करना है, और वी हैव टू टेक वन एज अ सेकंड फंक्शन। कोई भी फंक्शन रहने दो, कोई भी नंबर रहने दो, सब नंबर्स या फंक्शन वन से मल्टीप्लाई होता है। देखिए, log x इंटू 1 इंटू dx, log x इंटू 1 इज अगेन log x, नो प्रॉब्लम। तो हमेशा वन को सेकंड ही रखना है, क्योंकि हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव में सेकंड फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑलवेज log रहेगा और सेकंड ऑलवेज 1 रहेगा। चलो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log into again integral of second function, that is 1 dx। तो देखिए अभी log x, integral of dx is x, derivative of log x is 1/x and integral of dx is x, और ये इंटीग्रल का dx प्लस c। देखो यहाँ पे x के x कैंसिल हो गया, x इंटू log x इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx प्लस c। तो x इंटू log x और dx का इंटीग्रल x प्लस c। तो चाहे तो आप x को कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यू कीप इट एज इट इज। तो log x इंटू 1 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx का मतलब dx, so इंटीग्रल ऑफ dx इज x, log x का 1/x, dx का फिर से x x कैंसिल हो गया, 1 इंटू dx आया और उस dx का इंटीग्रल x। तो इन सच ए वे वी फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ ओनली log x। देखो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, अप्लाई द सेम। सो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx, अगेन वी चूज फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, वन इज ऑलवेज सेकेंड। तो देखिए अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ dx इज x माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ dx इज x dx प्लस c। तो देखिए x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब बताइए मुझे कि कैसे आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसके पहले जस्ट मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था tan इनवर्स x का x इंटू tan इनवर्स x, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का पावर सेम था, इसलिए मैंने वो रैशनल फंक्शन तो डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में अरेंज किया था बाय टेकिंग +1 -1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर का पावर कम है और डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है, तो फिर ऐसे समय हम यहाँ पे +1 -1 एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर +1 माइनस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना है, डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर का पावर जो है वो कम है। न्यूमरेटर का पावर अगर सेम रहता है या डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो ही डिवीजन पॉसिबल होता है। अगर न्यूमरेटर का पावर कम है डिनोमिनेटर से तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस समय आप एक बात ध्यान में रखो कि अगर न्यूमरेटर का पावर कम है डिनोमिनेटर से तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे 2x का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट हम कांस्टेंट का कर सकते हैं, वेरिएबल का नहीं कर सकते, ये भी आप बात ध्यान में रखो। नाउ सिंस d by dx of 1 plus x square 0 plus 2x that is 2x, और हमारे पास में फॉर्मूला है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हम लॉग में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा, और जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है उस समय वो इंटीग्रेशन को हम लॉग में लिखते हैं। तो देखो x इंटू tan इनवर्स x माइनस, देखो 2 का अरेंजमेंट करता हूं मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 प्लस c, तो ये हो गया f डैश ऑफ x, ये हो गया fx, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वो रूल अप्लाई करते हैं x इंटू tan इनवर्स x, कीप इट एज इट इज, एंड log ऑफ 1 plus x square plus c. So in such a way we have to find out the integral of tan inverse x. Okay, चलो और लेते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x. अदर एग्जांपल देखिए, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है। तो साइन इनवर्स x, जैसे कि हमने tan इनवर्स x इंटू 1 लिया था, वैसे साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। तो देखिए साइन इनवर्स x 1 और 1 को सेकंड फंक्शन चूज किया है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ dx इज x माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ dx इज x इंटू dx प्लस c। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो देखिए अभी जैसे कि इसके पहले एग्जांपल में हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में था तो डायरेक्ट लॉग हमने किया था, लेकिन यहाँ पे भी क्या वैसा ही सिचुएशन है? क्या यहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए? तो देखिए अभी मैं आपको वो स्टैंडर्ड रूल बताता हूँ। जैसे कि 1 अपॉन एक्स, ये रूल से हमने x का डेरिवेटिव 1 होता है, यही रूल से हमने एक स्टैंडर्ड रूल डेवलप किया था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है
यानी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो हम डायरेक्ट आंसर लॉग में लिख सकते हैं। ये रूल हमने यहां से लिया है। एक्स है तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए आंसर लॉग में है। और दूसरा, अगर मैं 1 अपॉन रूट एक्स लेता हूं इसके लिए, ये फॉर्मूला देखो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, एक्स रेस टू हाफ डी एक्स रेस टू माइनस हाफ डी एक्स माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो 2 माइनस 1 एक्स रेस टू हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, दैट इज 2 रूट ऑफ एक्स प्लस सी। यानी 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 रूट ऑफ एक्स। तो ये 1 जो है, ये 1 को हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यानी कोई भी फंक्शन, ये जनरलाइज रूल हो गया अभी, अगर कोई भी फंक्शन रूट के अंदर प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 2 रूट ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एक्स का डेरिवेटिव ऊपर था, इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में, वैसे ही अगर रूट के अंदर है और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो हमेशा 2 रूट ऑफ एफ एक्स। तो यहां से भी ये रूल आप बना सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो दिस इज अनदर रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल एंड दिस इज द सेकेंड रूल। तो मुझे बताओ, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 2x होता है। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, और ऊपर मेरे पास x ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर x नहीं रहता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं छोड़ देता, लेकिन x का मतलब इधर जो x है वो x मेरे पास में ऑलरेडी है, माइनस साइन भी मेरे पास में है, मुझे सिर्फ अरेंज करना है तो कांस्टेंट को अरेंज करना है, तो वो कांस्टेंट को अरेंज मैं आसानी से कर सकता हूं। तो फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल वी हैव टू अरेंज 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो अभी कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप एडजस्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं, x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, तो माइनस में निकालता हूं और माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूं क्योंकि मुझे माइनस साइन चाहिए, dx प्लस सी। अब x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, तो मैं यहाँ पे हाफ पहले ले लिया, एनीवे मैं अभी हाफ लेता हूं, ये माइनस अंदर ले लिया, अब मैं 1/2 लेता हूं, फिर 2 का मैं एडजस्ट करके, अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट होता है कि नहीं, 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट इज 2 रूट ऑफ एफ एक्स। देखो क्या आता है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 कैंसिल करो और फाइनल आंसर x इंटू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स।